Good afternoon, ladies and gentlemen. I am Rituja, the moderator for this conference call. Welcome to the ninth Investor and Analyst Conference Call of Ice Make Refrigeration Limited, arranged by Ariana Matasco Reputation PR and Communications, Focus PR and IR Consultancy to discuss the final results for FY21 and the road ahead. Ice Making Refrigeration Limited is a leading supplier of innovative cooling solutions and manufacturer of 50-plus refrigeration equipment. The company has been successfully satisfying the need of its customers from production to after-sales service from the last 30 years. The company is engaged in the business of providing customized cooling solutions to diverse set of clients across wide range of industries by manufacturing and supply of high-quality refrigeration products and equipment. We have with us today Mr. Chandrakant P. Patel, Chairman and Managing Director, Mr. Nikhil Bhatt, Vice President Strategy, Mr. Ankit Patel, CFO, and the key management from Ice Make Refrigeration Limited. At this moment, all participant lines are in the listen-only mode. Later, we will conduct a question and answer session. At that time, if you have a question, please press star and 1 on your touchtone keypad. Please note that this conference is being recorded. I would now like to hand the floor over to Mr. Patel. Thank you, and over to you, sir. गुड इवनिंग, मैं चंद्रकांत पटेल, CMD आइस मैक रेफ्रिजरेशन लिमिटेड। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। इस साल के रिजल्ट सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे, क्योंकि पिछले साल जिस प्रकार कोरोना ने दस्तक दी थी, उसके कारण पूरे देश के अंदर एक द्विधा की स्थिति थी कि आगे क्या होगा, कैसे होगा, कौन सी परिस्थितियां होगी, किसको कुछ पता नहीं था। लेकिन धीरे धीरे पूरा देश न्यू नॉर्मल की और आगे बढ़ा। आइसमैक की बात करें तो पिछले साल शुरुआत के महीनों में, यानी कि पहले क्वार्टर में बिजनेस काफी कम हुआ, लेकिन धीरे धीरे उसमें सुधार होता गया और पूरे साल की बात करें तो हमने लगभग पिछले साल की टॉप लाइन के करीब बिजनेस टॉप लाइन हम अचीव किया। कोविड के कारण आइसक्रीम इंडस्ट्री और हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्रीज को काफी असर हुआ था, लेकिन उसके सामने हमारा फार्मा का बिजनेस बढ़ा। उसके साथ में डेयरी और एमोनिया का सपोर्ट भी अच्छा रहा। महत्वपूर्ण बात यह है कि ऐसे चुनौतियों वाले वर्ष में भी कंपनी को हाल ही में सबसे बड़ा 15.5 करोड़ तक का एक बटर स्टोरेज का बड़ा अमूल ग्रुप मेंबर्स का एक ऑर्डर मिला है। अभी हमारा पेंडिंग ऑर्डर बुक भी 38 करोड़ है। इसमें ये ऑर्डर भी शामिल है, इसमें शामिल नहीं है। हमें एमोनिया में भी 4700 मेट्रिक टन बटर स्टोरेज जो मैंने अभी बताया वो ऑर्डर हमें मिला हुआ है। रिफर वैन में हमने तिरुमाला कुटे ग्रुप को 100 वैन सप्लाई कर दी है और दूसरे 75 वैन के ऑर्डर भी पेंडिंग है। एक्सपोर्ट में अब तक 3.5 करोड़ का बिजनेस हो गया है फर्स्ट क्वार्टर में। यूएसए जिस बिजनेस की बात हमने पिछले कॉल में की थी, उसके भी ऑर्डर हमें कंटिन्यूस मिल रहे हैं। हमारी नई प्रोडक्ट फ्रीज ड्रायर के भी हमें ऑर्डर मिले हैं। एक कैमल मिल्क और रेडी टू ईट प्रोडक्ट के लिए हमने 2 प्रोजेक्ट किए हुए हैं। सोलर कोल्ड रूम की भी अब अच्छी इंक्वायरी है और हमारा फोकस भी उस पर रहेगा। हमने हाल ही में 4 से 5 सोलर कोल्ड रूम की डिलीवरी भी कर दी है। थैंक्स। आगे हमारे CFO अंकित पटेल आपको फाइनेंस और VP मिस्टर निखिल भट्ट बिजनेस अपडेट देंगे। थैंक यू। Good afternoon to all of you. Despite lockdown and other challenges in first half of FY21, the overall business recovery in second half for the year was as per our expectations.
we were able to generate healthy cash flow due to various cost rationalization, capital preservation, and prudent working capital management measures. These measures enable the company to close FY21 with a strong balance sheet, healthy liquidity, and cash flows. The company has succeeded in maintaining its financial performance for the financial year ended March 31, 2021. Consolidated financial performance for Q4 FY21 summary right now I am giving. Our revenue witnessed strong recovery in Q4 FY21. On a comparable basis, revenue was up by 26.56% year-on-year basis. Consolidated revenue for Q4 FY21 stood at rupees 53.79 crore as compared to 42.50 crore in Q4 FY20. Finance costs for Q4 FY21 saw a major reduction, while dropping by 49.7% on year-on-year basis to 31.6 lakhs. Overall performance last year was impacted by COVID-19 lockdown, while the current quarter showed good recovery in financials. Consolidated net profit reduced by 15.87% year-on-year in Q4, majorly on account of increase in raw material prices. Consolidated revenue for FY21 stood at 135.87 crore compared to 138.16 crore reported in FY20, a marginal dip of 1.66%. During the year, the company earned an EBITDA of 11.55 crore with EBITDA margin of 8.50% on consolidated basis. Annual financial costs decreased by 17% year-on-year from 2.29 crore in FY20 to 1.9 crore in FY21. Annual consolidated profit also showed a dip of 28.48% year-on-year to 3.61 crore as compared to 5.05 crore in FY20. Annual diluted EPS stood at rupees 2.30 per share in fiscal 2021. The board recommended a final dividend of rupees 1.2, that is 12% per equity share of rupees 10 each for FY21. Okay, this is from me. Now next to Mr. Nikhil Bhatt, Vice President Strategy. Thank you. Okay, good afternoon. We ICMEC always believe that the cyclical setbacks like ongoing global pandemic are opportunities to offer solutions, innovations, and reinvent ourselves. And that is why we have been able to acquire several new customers despite challenging business environment. As you know, we have started to provide dairy solution, turnkey solution, as well as the ice cream mix solution. But because of the lockdown, corona effect, we could not be able to do business more in the ice cream segment. But in all overall, whatever we have invented new, we have started our new project. We are beneficial on that part. We have recently completed one big turnkey project of about 2,400 metric ton cold storage, along with its PV structures and all other refrigeration equipment. We also supplied the milk storage silo of about 30,000 and the 20,000 liter with the multi-compartment division. We have supplied, so far as vaccine is concerned, during this quarter or the last quarter of the last year, we have supplied refrigerated van for the vaccine to the one of the leading organization of Indian government, that is IOCL, as well as the Gas Authority of India. We have supplied the vaccine van under their CSR activities for the vaccine. As well as we have some of the few new customers that have joined with the ICMEC for the business for the specific requirements, the customized solution we are providing. So for the online platform, we have joined with the ICMEC. They have repeated some orders, and some of the leading brand of India, they have also started some agreement with the company for the manufacturing and the supply of the product. So far as FY21, there were a mix of the vertical-wise business. So in certain vertical we have grown up, and certain vertical it was deep due to corona.
So far as ammonia refrigeration is concerned, we have almost doubled our revenue portion in FY21. Transport refrigeration is also increased by 2%. Industrial refrigeration, that is chiller and all other products, it is also improved. But some other vertical, which is commercial, that was somehow deep due to this ice cream industry setback and hospitality industry setback. The cold room vertical, we have so far managed to maintain the whatever the business we have in last year. Our export business is also increased, but so far as what we have planned in FY21, we could not achieve because of this corona and international traveling restrictions. We could not achieve. But in this current scenario, we are hopeful that it will be more whatever we have expected in the previous year. Looking to our order book on hand, we are quite hopeful that this year we will be able to achieve good business. Thank you. Thank you very much. We will now begin the question and answer session. Anyone who wishes to ask a question may press star and 1 on the touchtone telephone. If you wish to withdraw yourself from the question queue, you may press star and 2. Participants are requested to use handsets while asking a question. Ladies and gentlemen, we will wait for a moment while the question queue assembles. The first question is from the line of Dharmesh Solanki, an individual investor. Please go ahead. Yeah, I just want to ask to Mr. Patel or Nikhil and Ankit that what is the plan for the export in this year or maybe in next 1 or 2 years? How many countries are we planning for the export, and what are the revenue we expect from the export? And what's the plan from the company side? I mean, are we planning for additional license, whatever is required, or do we have the enough license to export in the multiple countries, etc.? Thank you. So far as export is concerned, what we have looking to our past record as well as the current scenario, it is improving day by day. It is unfortunate that last year we could not get the whatever we expected due to this corona and but we are now, as of now, we have supplied to almost more than 21 countries in past, as well as rightly says by our MD sir that we have already one of the customers, US customers, they have already put up their orders for the continuous supply. They are quite satisfied, and we are hopeful that we will be able to get the business from US market also. As well as the African countries, there is a quite potential, and we are also on that track. Right? We have done so many work previously as well as on the current process. So we are hopeful that these are the African countries as well as the US market. What we have received from response from one of the customers, as well as the surrounding countries, our neighborhood countries, we are also getting some good orders from Nepal, Sri Lanka as well as. Okay. Just one question. So are we targeting individual companies, or are we supplying to the, it is a bulk order from US or Africa, or it is a single company or single individual are raising the request? What is the business model there? See, from US, there is one type of OEM we are connected with them. He is putting this order on regular basis as per the requirement. Mm-hmm. And other countries, there may be an individual project, individual parties, and some of the associates in the East African countries we have developed previous year. So it's a mixture of both the way that individual customers are also there and OEM also there. Okay. And can you tell me about the impact on the revenue in next 2-3 years from this, whatever opportunities we have
from the US and African countries? Major of our income is not from export. We have just started to focus export. So, So that's why I'm sorry to interrupt you. So that's why I'm asking that we have just started on the export part. So for example, down the line in 2022, 23 or 24, what is the expectations from the, export revenue? I mean, we definitely, company will grow as part of the India and, local support. But what is the revenue expect from the next 2-3 years from the export oriented? I mean, that's what I'm looking. We are expecting annually around 30 to 40% growth in our export revenue year on year. Okay. Thank you. Yeah. Thank you so much. Thank you. The next question is from the line of Rajnikant Shah, an individual investor. Please go ahead. Good afternoon, sir, and congratulations for giving a good result, quarter to quarter, good result and dividend. So we are very happy. My question is about now today at present the seed prices are increasing day by day, and so it will impact the cost of your product. So what will be the growth margin or growth or margin will be affected? Can you please explain? As everyone is aware that raw material prices are increasing like we have never faced in the future. So we are definitely keeping a track. We are we are doing quarterly review in some of the big projects in order. We are reviewing on a case-to-case or a project-to-project basis also. We are also gradually and timely basis passing some raw material price hikes to our customers. But it is quite not possible to pass each and every impact of recent increase in a very short span of time. So gradually we are doing some product re-engineering we are doing. So in some of the cases that while we are using thickness of our sheet metal, that we are reducing the same. In some of the few chemicals density. So in some of the cases we are doing the product re-engineering, and there is also, I think, recently some of our soft chemical material has started reducing, but somehow some other metals are not quite reducing well. So we are doing re-engineering, and some of the internal setup of our raw material prices are being adjusted. But we can rightly say that it is not possible to maintain such our historical margin if such type of raw material prices are continuing maybe 5 to 6 years, 6 months, sorry. It will impact our margin. Okay. And the question is, can you intend to increase the capacity, and otherwise any backward integration, any idea, or what about the increase in capacity? So far as capacity is concerned, we have enough capacity as of now, and backward integration, there is no any plan in near future, because what we have planned that is already done. But as Mr. Ankit says, that we are re-engineering our product and not at the compromising the quality. Whatever base we can do and whatever the present situation, we are trying to improve the margin or to maintain the margin. Okay. Any acquisition plan? Sorry? Any acquisition? You are planning for any acquisition, other company or? No, not in near future. We have not planned anything right now. Okay. Thank you. Thank you. Thank you. Participants who wishes to ask a question, please press star and 1 now. The next question is from the line of Varun Sheikh, an individual investor. Please go ahead. So thank you for the opportunity. My question is basically, I think a couple of quarters back or last call, we discussed about Luxembourg joint venture, and there were some discussions around that. So if you can appraise us with what is the status of that joint venture,
and what feedback we have got from the joint venture partner, or because there is no such announcement which has been made yet. See, so far as you know that in the international market or in the international company, they are taking their own time for the finalization of the project. So for the Luxembourg company, we have already proceeded further, and one of the, as per the requirement, some trial is also going on for the one of our products. So at the right time, we will announce and when it will be finalized. But there is a progress in that matter, and we are positive that we will be able to announce very soon. So the trial basically is, are we going to export to them, or it is basically for setting up some new plant as a joint venture? I know it may be not correct to talk entirely, but if you can give some gist about the proposed discussions. See, they specify one of the products, and we are developing as per the requirement, and it is already done, so it is at the final stage. Not the joint venture. Then it will be like a order which we will receive, right? It won't be a joint venture kind of a thing. No. As of now, there is no. So that 30-40% growth in export which you are envisaging covers this piece as well, or this will be something additional over and above that? No, naturally it will affect also. That will be additional boost to the our whatever the expectations there. Okay. Secondly, this export जो आपने बात किया उसमें last quarter we also received one initial order from US for some panels and all, and which was around $1 lakh or $2 lakh. So आपने अभी जो बोला उसमें what I understand उसमें काफी progress है, और 3.5 crores का already export हो चुका है in Q1. That is what you said. Is my understanding correct? Yes, we have done more than 3.5 crore around dispatch in Q1 for export. And that is the same US party जिसको start order मिला था last quarter में. I think a US party order was maybe around $70,000. But there are some other parties also in export. Okay. And commodity prices, as you said, अगर 6 महीने और बढ़े या stable भी रहे तो अपने margins likely to be impacted because we are not able to pass on fully the prices. So can we, and assuming commodity prices at this level, so can we assume like 8.5% EBITDA and 30% gross margins for this year at least, or it will increase? Because last year your EBITDA margins and gross margins were higher. अगर रॉ मटेरियल प्राइस ऐसे ही रहे मतलब मे बी पूरे साल में, तो एकदम वैसे प्रेडिक्ट कर पाना क्या मार्जिन रहेगा, दैट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर अस आल्सो. बट हमें लगता है कि अगर ऐसे ही मार्जिन रहेंगे तो एज ए इंडस्ट्री एज अ होल प्राइस इंक्रीज करती है, और हमने भी कुछ एक प्रोडक्ट में किए हुए हैं. तो इट इज नॉट लाइक के ओवरऑल जो भी इम्पैक्ट है वो हमारे मार्जिन पे सीधा इम्पैक्ट पड़ेगा. बट ऐसे ही रॉ मटेरियल प्राइसेस रहेंगे तो कुछ एक परसेंटेज या कुछ एक पोर्शन का इम्पैक्ट कंपनी के ऊपर भी आएगा, और कुछ एक पोर्शन पास ऑन भी ग्रेजुअली, मतलब वो इट्स अ नेचुरल प्रोसेस कि कोई भी ऐसे सस्टेनेबल तो इस मार्जिन पे हम रह नहीं सकते, तो ग्रेजुअली हम उसको भी पास ऑन करेंगे. अगर रिड्यूस नहीं होता है तो थोड़ा सा मतलब फर्स्ट हाफ या वैसा तो इम्पैक्टफुल रहता है, ऐसा लग रहा है अभी करंट सिचुएशन के हिसाब से. राइट. बट उसमें फिर डिमांड कम होने का अंदाज है कि बिकॉज प्राइसेस अगर बढ़ेंगे तो, बिकॉज जैसे कमोडिटी प्राइसेस का ट्रेंड जो है अभी वो तो ऐसा लग रहा है कि द प्राइसेस में रिमेन एट दीज लेवल्स ओनली फॉर नेक्स्ट डिकेड, ऐसा लोग बोल रहे हैं. इट मे बी डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट बट ऐसा लोग बोल रहे हैं. तो उसमें क्या डिमांड कम होगी कि क्या होगा, क्या प्रेशर आएंगे कंपनी पर आपके हिसाब से? एक्चुअली कमोडिटी प्राइस ऐसा ही रहे तो ओवरऑल इंडस्ट्रीज एक प्राइस या कमोडिटी प्राइस अगर इंक्रीज है और वहीं पर स्टेबल होते तो ओवरऑल इंडस्ट्रीज में सब मैन्युफैक्चरर अपने रेट बढ़ा देते हैं. तो फिर कंपटीशन में सब लोग इनिशियल स्टेज पे देखते हैं कि
ये इंक्रीज हुए प्राइस वापिस आ जाएंगे तो अपना बिजनेस बचाने के लिए इमीडिएट इफेक्ट नहीं देते, लेकिन आगे जाके तो सब लोग फिर प्राइस ट्रांसफर कर देगा, तो ऐसा कमोडिटी प्राइस लंबा चलेगा तो प्रॉफिट पे इफेक्ट नहीं आएगा और बिजनेस कम होने का चांस नहीं, क्योंकि कैपिटल गुड्स में काफी बिजनेस होप दिख रहा है। अगले सालों के कंपैरिजन में हमारा Q1 का जो बुकिंग है वो भी काफी अच्छा है। जनरली हम लोग Q1 में बुकिंग हमारा काफी कम होता है, क्योंकि मॉनसून के पहले हमारा काफी सारी इंडस्ट्रीज है जिस पे जो सेगमेंट में हम लोग काम करते हैं वहाँ काफी स्लैक होता है। लेकिन करंट ईयर हमने देखा कि हो सकता है कोरोना का जो लोगों ने अपना पोस्टपोन किया हुआ डिसीजन की वजह से, तो ओवरऑल इंडस्ट्रीज रेट इंक्रीज होने की वजह से कम होने का तो कोई चांस नहीं दिख रहा है और प्राइस इंक्रीज है रॉ मटेरियल के वो वहीं रहेंगे, तो हमें मार्केट और कस्टमर को ट्रांसफर करके हमारा मार्जिन तो हम बचाएंगे। राइट। और बिजनेस के बारे में ज्यादा समझे तो व्हाट आई ऑब्जर्व्ड इज कि आपके फर्स्ट हाफ काफी लंपी रहते हैं एंड ज्यादातर रेवेन्यू सेकेंड हाफ में ही आता है। उसका क्या रीजन? बिकॉज आप सारे सेगमेंट में, मतलब डेयरी में भी काम कर रहे हो, फार्मा में भी काम कर रहे हो, सो सारे सेगमेंट में काम कर रहे हो, विंटर्स में भी काम कर रहे हो, समर सीजन वाले भी काम कर रहे हो, तो अपना रेवेन्यू लंपी क्यों रहता है क्वार्टर ऑन क्वार्टर? मतलब आई कैन अंडरस्टैंड कुछ एग्जीक्यूशन ये क्वार्टर में हुआ तो नेक्स्ट क्वार्टर में रेवेन्यू आएगा, वो सब थोड़ा माइनर हो सकता है, पर ओवरऑल आई हैव ऑब्जर्व्ड कि फर्स्ट हाफ ज्यादा म्यूटेड रहता है और सेकेंड हाफ में ज्यादा रेवेन्यू होता है। वो उसमें कुछ आप ट्रेंड ही है हमारा और हमारे जो कॉम्पिटिटर है पीयर सबका यही है। आप रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग में अभी भी वो माइंडसेट है लोगों का, जो कंज्यूमर डिमांड जो है ना Q2 सेकंड हाफ में जितना होता है ना, तो लोग अपना जो प्लानिंग है कैपेसिटी इंक्रीज करने का या तो नया, तो जनरली लोग उस टाइम पे ही डिसीजन लेते हैं। और Q1 और Q2 में भी काम तो होता है, लेकिन काफी सारे फार्मा और जो बड़े प्रोजेक्ट है उसका रहता है, तो ये तो अभी रेशियो और कम हो गया फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ का। आगे जाके लगता है जिस हिसाब से ट्रेंड चेंज होता है तो इक्वल हो जाएगा ऐसा लग रहा है, लेकिन ये मार्केट की डिमांड है, उसमें हम बिजनेस प्लान करने से भी उसको चेंज नहीं कर पाएंगे। राइट। और अभी अपना क्या होगा कैपेसिटी यूटिलाइजेशन ये पूरे साल भर में? 55% के आसपास है, प्रोडक्ट वाइज थोड़ा सा प्लस माइनस होगा। राइट। और गोइंग फॉरवर्ड व्हाट आर प्लान्स, लाइक जो अपने पहले बोल रहे थे कि 20-25% सेल्स ग्रोथ रहेगा, सो दैट वी आर क्लियरली सीइंग बेस्ड ऑन आवर ऑर्डर बुक एंड डिस्कशन विद दी और इन दी मार्केट्स एंड ऑल। अभी हमें लगता है कि करंट ईयर में हम लोग 30% टॉप लाइन ग्रोथ कर पाएंगे और आगे जाके हम 25%, अगर अच्छा मार्केट रहा तो 25% के CAGR के साथ में अगले 3-4 साल कोई कैपिटल इन्वेस्टमेंट, लंबा कैपिटल इन्वेस्टमेंट किए भी कर पाएंगे। राइट, बट प्रॉफिट ग्रोथ उतना नहीं होगा, राइट, बिकॉज ऑफ दिस लंपीनेस इन मार्जिन। ये है, उनसे कम नहीं होगा उतना बता सकते हैं, लेकिन ज्यादा बढ़ भी नहीं पाएगा क्योंकि कमोडिटी प्राइस अभी इस सिचुएशन को देख के लगता है कि एज इट इज तो वापिस आना मुश्किल है। और अमोनिया रेफ्रिजरेशन का जो अपना बिजनेस है वो कैसा पैन आउट हो रहा है और अभी कितना शेयर है उसका और आगे जाके वो कैसे देख रहे हैं आप? अमोनिया बिजनेस में हम लोगों ने शुरू किया, उसको 3 साल हो गया, तो काफी अच्छा ग्रोथ है क्योंकि वो ट्रंकी और प्रोजेक्ट बेस्ड होता है, तो वॉल्यूम में बिजनेस होता है। अभी जो हमने 15.5 करोड़ का जो ऑर्डर बुक किया वो भी अमोनिया वर्टिकल में ही है। उसमें काफी अच्छी ब्रांड है, बीकानेर, हल्दीराम, ऐसे अच्छे कोऑपरेटिव में भी हम लोग काम करते हैं। तो हम लोग ने 20 में 9.75 करोड़ का बिजनेस था 2021 में, और 19-20 में 4.87 था, और करंट में तो लगता है कि जस्ट डबल हो जाएगा क्योंकि ये जो कॉन्वेंट प्रोजेक्ट है वो भी अगले 6-7 महीने में हमें कंप्लीट करना है। राइट, गुड, ओके, थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। Thank you.
The next question is from the line of Dharmesh Solanki, an individual investor. Please go ahead. Thank you again. I want to know that is there anyone from the mutual funds or FIIs or the other investor are looking to invest, or are we trying for that from the investment perspective? जनरली पास में भी हमारे कई म्यूचुअल फंड एजेंसियों से वैसे कॉन कॉल या वैसा हुआ है, पर एज ऑफ नाउ कोई म्यूचुअल फंड या वैसा हम मतलब इन्वेस्टर है नहीं अभी. So what do you think? I mean, what they are looking, is it like because they are looking the large equity base, or they are looking something related to more information related to business, or they are looking what is missing? I mean, as per your different calls with those large corporate or mutual fund or FII, what they are looking and what we are missing? Can you just tell on that part? जितनी हमारी उनसे बात हुई तो उनको मतलब हमारे इंडस्ट्री में या मतलब रेफ्रिजरेशन इंडस्ट्री के फ्यूचर में तो दे ऑल आर मतलब जितने भी लोगों से बात हुई है दे ऑल आर वेरी होपफुल. मतलब क्या रोक रहा है या व्हाई दे आर रिस्ट्रेनिंग, तो हमें ऐसा लग रहा है शायद दे मे बी लुकिंग फॉर सम वेदर देयर अपॉर्चुनिटी, और उनका खुद का कोई कैलकुलेशन वैसा हो सकता है, पर जनरली वैसा उन्होंने इनडायरेक्टली वैसा शेयर नहीं किया है कि कब व्हेन दे वांट टू एंटर, बट दे आर कीपिंग ट्रैक. कभी कभी वैसे ही फोन पे या कॉन कॉल पे वैसी वो कुछ एक इन्फॉर्मेशन देखते हैं या बातचीत करते रहते हैं, तो दे हैव केप्ट अस इन अ ट्रैक, बट उनके कुछ अपने कैलकुलेशन से या अपने कॉल होते होंगे शायद, बट उन्होंने हमें लूप में रखा है वो हमें पता चल रहा है. Okay. The reason I'm asking because if they someone like any mutual fund or any other investor or FII, if they invest, then there is it's going to be very good for the individual investor like me, and for company also. I think from the prestige perspective, and for other investor also who are holding from the long, and obviously for promoter as well. Right? So I request you, if in future whenever you have some call with those corporates or mutual fund industry people, just try to get the details what they are looking and what is missing, so that it will benefit to everyone in this call. Right. Okay. Yeah. So we will try. Thank you. The next question is from the line of Gurjot Aluwalia, an individual investor. Please go ahead. Yeah, good afternoon everyone. Thank you for the opportunity. मेरा पहला क्वेश्चन ऑर्डर बुक के अराउंड है. सो आपने कॉल के शुरू में बोला था आई थिंक 38 करोड़ की करंट ऑर्डर बुक है, एंड आई थिंक 15 करोड़ का एक और ऑर्डर आया है अमूल का. तो अगर हम इस साल 25% या 30% ग्रोथ करना चाहते हैं रेवेन्यू में, राइट, तो अराउंड 150 करोड़ का रेवेन्यू हो जाएगा. तो ऑर्डर बुक सिर्फ 4 महीने की ही दिख रही है. तो जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि हमारे पास ज़्यादा ऑर्डर बुक नहीं होनी चाहिए क्या अगर हम इतना हाई रेवेन्यू करना चाहते हैं, या फिर इंडस्ट्री ही ऐसी है कि 3-4 महीने की ऑर्डर बुक होती है? नहीं, जो इंडस्ट्री का नेचर है, जैसे वैसे पहले बताया कि नॉर्मली जो एज ऑन नाउ ऑर्डर बुक होती है और सेकंड और थर्ड क्वार्टर में नॉर्मली थोड़ा कम रहता है, मगर एट द एंड ऑफ द ईयर हो जाता है. और जो अभी आप ऑर्डर बुक देख रहे हैं वो इसके अलावा भी कई सारे प्रोजेक्ट जो है जो पाइपलाइन केसेस है, तो उसमें वी आर होपफुल, और इट इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस, ऑन गोइंग प्रोसेस. एवरी मंथ हमारी ऑर्डर बुक करीबन 12 करोड़ के आजू बाजू होती है. तो वो तो ऑन गोइंग प्रोसेस है, ऑर्डर आते हैं, डिस्कस होता है, तो ये कंटिन्यूस हमारी ऑर्डर बुक इससे ये 40 करोड़ के आजू बाजू रहती है. ओके, ठीक है. इसी से रिलेटेड मेरा क्वेश्चन है, थोड़ा आइसमेक के बिजनेस को थोड़ा और बेटर समझने के लिए, कि हमारे पास कुछ रिपीट क्लाइंट हैं जिसके साथ हम ईयर ऑन ईयर बिजनेस करते हैं, या फिर जब भी कोई कंपनी कॉर्पोरेट अपना ग्रीनफील्ड ब्राउनफील्ड कैपेक्स कुछ करता है, नया फैसिलिटीज प्लांट सेटअप करता है, तभी उनको आइसमेक के प्रोडक्ट चाहिए होते हैं. कुछ हमारे पास लाइक वो है कि हर साल हमारे कुछ क्लाइंट्स हैं जिनके साथ हम बिजनेस करते हैं, ऐसा कुछ है?
नहीं, ऐसा है, हमारे पास जो हमारा क्लाइंट कल्चर है वो मिक्स क्लाइंट है। वो नए ग्रीन फील्ड वाले कस्टमर भी आते हैं और रिपीट कस्टमर भी है। और कई कस्टमर जो हमारे पुराने कस्टमर है वो भी अपने बिजनेस ग्रोथ करने की वजह से उनका भी एक रिक्वायरमेंट डिमांड होता है, तो वो पहले आइसमेक को ही प्रेफर करता है। और काफ़ी लीडिंग ब्रांड जो है, हमें पिछले 2-3 साल से जो हमारे साथ इंटरनेशनल लेवल की जो ब्रांड है वो भी इसी क्वार्टर में हमें कोई अच्छा ऑर्डर उन्होंने रिपीट किया है। तो रिपीट कस्टमर भी है और नए कस्टमर भी है, दोनों कस्टमर हमारे साथ है। तो रिपीट कस्टमर का बिजनेस कितना होगा? लाइक अगर 100 रुपीज है तो 100 में से कितना रुपीज रिपीट कस्टमर के साथ होगा? अगर OEM और सब मिला के बोले तो 30 to 40% वी कैन काउंट इट कि वो हमारा, क्योंकि OEM जो है हमारे रेगुलर क्लाइंट है, वो रिपीटेड उसका ऑर्डर होता ही है रिटेल के अलावा। तो 40%। जी ठीक है, बाकी सारे नए कस्टमर एवरी ईयर। क्या? और जैसे हमारी प्रोडक्ट हो गई वो कैपिटल प्रोडक्ट है, तो हो सकता है कि आज किसी ने ऑर्डर किया है तो उनकी शायद नई रिक्वायरमेंट 2-1 साल बाद आए, तो उनका रिपीट ऑर्डर भी मिलता है और वो कुछ एक टाइम के बाद मिलता है। जैसे OEM है, हमारे डीलर है, उन लोगों का तो रेगुलर रिपीटेड बिजनेस हमें आता ही है। गॉट इट। प्रोडक्ट थोड़ा सा रीऑर्डरिंग में ईयर ऑन ईयर शायद उनका नहीं हो पाता है, लेकिन कई सारे उनके रेफरल ऑर्डर होते हैं, कई उनके एक्सपांशन ऑर्डर होते हैं, वो जनरली हमें रिपीटेड बेस पे मिलते हैं। कैपिटल प्रोडक्ट है ना, इसलिए ये कंटिन्यूस ऑर्डर तो एक पार्टी से हर एक साल एवरी ईयर नहीं होता वो। हाँ, तो वही चीज है जो एक लाइक, अच्छा पिछला जो क्वेश्चन था जैसे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री रिलेटेड था कि अगर कोई बिजनेस में कंटिन्यूटी दिखे, कोई रेवेन्यू की विजिबिलिटी दिखे कि अगले 1-2 साल का स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक है, स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू दिख रहा है, तो फिर वो बड़े बड़े म्यूचुअल फंड्स और इन्वेस्टर्स अट्रैक्ट हो जाते हैं उस कंपनी की तरफ कि हमें फ्यूचर तक दिख रहा है कि इतना रेवेन्यू, इतना धंधा करने वाली है, इतना प्रॉफिट करने वाली है। तो अगर वही दिखेगा तो शायद वो भी इन्वेस्टर आएंगे। ये मेरी थॉट प्रोसेस है। नहीं, हो सकता है, मगर ये इंडस्ट्री और ये बिजनेस में तो इतना कॉन्ट्रैक्चुअल जो आप बोल रहे हो, कॉन्ट्रैक्चुअल मैन्युफैक्चरिंग या कॉन्ट्रैक्चुअल ऑर्डर की जो बात कर रहे हो लॉन्ग टर्म, वो तो शायद बहुत लिमिटेड कंपनी के पास हो सकते हैं, शायद नहीं भी हो, क्योंकि ये नेचर ऑफ प्रोडक्ट ऐसा है कि वो कंटिन्यूस ऑर्डर नहीं आते। गॉट इट। ठीक है। एंड लास्ट क्वेश्चन, बिड्डा मार्जिन का आपने आई थिंक गाइडेंस दिया था पिछली कॉल में 10-11% के आसपास हम मेंटेन कर सकते हैं। तो अगले साल या उसके अगले साल आपको ये दिख रहा है? अभी लेट्स अज्यूम कि रॉ मटेरियल प्राइस अभी जितना है उतना ही रहेगा और बढ़ेगा नहीं, या फिर थोड़ा सा कम हो सकता है, तो 10-11% होगा या वो और कम हो जाएगा? मतलब अगर वैसे नॉर्मल सिचुएशन की हम बात करें तो 9 to 10% का EBITDA मार्जिन हम लॉन्गर पीरियड के लिए भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। दैट इज क्वाइट मेंटेनेबल। ओके, ठीक है। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू। Thank you. The next question is from the line of Rajnikant Shah, an individual investor. Please go ahead. Sorry, sir. Again, I have to ask one question. Only about this Chennai unit. This corona time, April, May, June, Tamil Nadu में बहुत प्रॉब्लम रहा है. तो what about the Chennai? They are making profit or making any loss, or what will be the future for that unit? आपने सही बताया, मतलब चेन्नई का जो यूनिट है वहाँ पे लॉकडाउन और कोरोना का इम्पैक्ट थोड़ा लंबा चला है। मतलब पिछले टाइम पे तो वहाँ पे केस काफ़ी नहीं हो रहे थे, तो लॉकडाउन थोड़ा सा स्ट्रेच भी वहाँ पे हुआ था। लेकिन ईयर ऑन ईयर की हम बात करें तो पिछले साल जो उनका टर्नओवर था FY 2021 में 8.5 करोड़ का था और उससे आगे 6.5 करोड़ का था, तो 2 करोड़ का टर्नओवर वहाँ पे इंक्रीज हुआ है इन स्पाइट ऑफ दिस कोरोना चैलेंज। स्टिल वहाँ पे ब्रेक इवन वाली पोजीशन आई नहीं है, लेकिन हमें लग रहा है कि इस साल से वो ब्रेक इवन पे आ जाएगा। और अभी फर्स्ट क्वार्टर की हम बात करें तो भारत में जो ऑर्डर बुकिंग है दैट इज क्वाइट गुड। नियरली 3 करोड़ के ऑर्डर उनके फर्स्ट क्वार्टर में बुकिंग हुए हैं और वहाँ पे भी थोड़ा सा अभी आफ्टर लॉकडाउन और वहाँ पे डिस्पैच भी अच्छा हुआ है।
तो हमें लगता है कि इस क्वार्टर से वो ब्रेक इवन पे आ जाएगा। वी आर एक्सपेक्टिंग अराउंड 12 करोड़, नियरली 12 करोड़ के आसपास का टॉप लाइन हम वहाँ पे जनरेट कर देंगे। ओके, गुड। एंड माय सेकंड क्वेश्चन अबाउट आपकी जो प्रोडक्ट होती है उसमें सर्विसेज बहुत रहता है मेरे ख्याल से। आपने सप्लाई किया, बाद में कुछ 1-2 महीने में कोई प्रॉब्लम है, आगे सर्विस, तो आपका वो जो एक्सपेंसेस है वो कैसा रहता है? और दूसरा कि अगर आप 1-2 साल के बाद आप चार्जेबल पे वो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं तो उसका क्या इम्पैक्ट रहता है और कंपनी पे, और क्या इसका थोड़ा मुझे बताएंगे कुछ भी? हमारी प्रोडक्ट में सर्विस लायबिलिटीज है, वो बात सही है, लेकिन कई सारे हमारे OEM और डीलर नेटवर्क के थ्रू भी हमारी प्रोडक्ट सेल होती है ना, तो वो लायबिलिटीज उनके स्कोप में रहती है। हम लोग जो बड़े प्रोजेक्ट है या कंपनी की ओर से जो डायरेक्ट सेल किया है वो ऑल ओवर इंडिया हमारी सर्विस टीम है उनके थ्रू देते हैं। सर्विस रेवेन्यू अगर आउट वारंटी सर्विस रेवेन्यू और AMC को फोकस करें तो हमारे पास अपनी खुद की एक अच्छी स्ट्रेंथ होनी चाहिए सर्विस टीम की। वो रिमोट मॉनिटरिंग थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इसलिए वो रेवेन्यू और लाना थोड़ा सा चैलेंज भी है और रिस्क भी लगता है, इसलिए वहाँ हमने फोकस नहीं किया है। लेकिन हमारी प्रोडक्ट आफ्टर सर्विस जो है 1 ईयर की कंपनी गारंटी बोलते हैं जिनको, वो हम अच्छी तरह से देते हैं। उनके लिए हम लोगों ने हमारी टीम जो है उतना ही स्ट्रेंथ रखा हुआ है। हाँ, थोड़ा दूसरा क्वेश्चन है सर, थोड़ा बुरा मत लगाना, ये मार्केट में सब ऐसा समझते कि ये कंपनी कोई कंजर्वेटिव है। मेरे ख्याल से उसके ऊपर एक तो थोड़ा प्रकाश डालिए। दूसरा, आपका जो एकदम फास्ट एक्सपांशन और ये जो होना चाहिए वो इतना नहीं हो रहा है आप, और ये इसका आप बोलते हैं कि इसका फ्यूचर भी बहुत अच्छा है, फिर भी लगता है कि थोड़ा एक्सपांशन में आप ये रहे हो। दूसरा, मुझे नॉर्थ इंडिया में आपका कोई ये नहीं है जहाँ डेयरी का और ये ज़्यादा ये है, तो थोड़ा आपका कोई प्लानिंग है वहाँ, या कोई एक्विजिशन, या तो कोई प्लानिंग है आपका नॉर्थ इंडिया के लिए कुछ? नॉर्थ में ऐसा कोई प्लानिंग तो नहीं है। साइज के बिगर अगर हम कोई वहाँ पर कोई हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेटअप लगाते हैं ना, तो कॉस्ट के सामने एक फिक्स टॉप लाइन अगर हम वहाँ जनरेट कर पाए तभी करना चाहिए। ये हमारा एक भारत का एक्सपीरियंस है चेन्नई का। तो हम लोग ईस्ट में हमें काफ़ी अच्छा बिजनेस है, ईस्ट और नॉर्थ में भले ही हमारा टॉप लाइन में बिजनेस कम है, लेकिन पिछले 2-3 साल से नॉर्थ और ईस्ट में हमारा सेल्स ग्रोथ है वो काफ़ी अच्छा है कंपेयर टू साउथ और वेस्ट। तो शायद वो अच्छा नहीं रहेगा कि आप वहाँ भी कोई यूनिट सेटअप किया, तो कुछ ऐसा आपका कोई ऑफिस कैसा ओपन हो के जहाँ से आपको इसका ये थोड़ा फायदा मिले, बेनिफिट हो जाए कंपनी को, वहाँ से नेपाल और ये भी आपको इजी रहेगा। या बिजनेस ग्रोथ के लिए हर एक एंटरप्रेन्योर तो सोचता है और उसका प्लानिंग करता है, मगर उसके लिए जैसा वायबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू देखना है। और अगर ये पिछले 1.5 साल की बात करें तो जो सिचुएशन है और आज की तारीख में भी अभी कोई ऐसा लगता है कि नियर फ्यूचर में क्या होगा, तो वो तो शॉर्ट टर्म प्लानिंग करना थोड़ा मुश्किल है। मगर हम उसी दिशा में सोच रहे हैं और उसी दिशा में हम काम भी कर रहे हैं, मगर ये बिकॉज ऑफ दिस कोरोना वो सभी का जो होल्ड हो गया है, वो ऐसा ही अभी हमारा भी प्लानिंग है, जो हम प्लान सोच रहे थे उसमें भी हमने होल्ड किया है। ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर एक्सप्लेनेशन। ओके, Thank you. The next question is from the line of Dharmesh Solanki, an individual investor. Please go ahead. Yeah, one more questions. This is regarding, about the other companies like Blue Star or Hitachi, etc. So, are we planning to have something related to the takeover, etc. between the companies or any business? अभी ऐसा जैसे बताया कि ऐसा कोई हमने प्लानिंग नहीं किया है टेक ओवर का, मगर जब हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है तो हम उसको डेफिनेटली उसको इवेल्युएट करते हैं। और फ्यूचर बिजनेस तो अच्छा ही है, मगर हम स्लोली इसीलिए जाना चाहते हैं कि जो एक्चुअल हमें गुड अच्छा काम करना है और अच्छा एक रिजल्ट देना है, मगर उसके लिए हम इतना फास्ट नहीं जाएंगे। मगर कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो हम ज़रूर कोशिश करेंगे कि हमें उसमें मौका मिले। करंट सिनारियो में हमने अपनी पेस भी मतलब वैसे कैपिटल एक्सपेंशन की, क्योंकि उसमें कैपिटल भी लगेगा,
तो थोड़ा सा कंजर्वेटिव नोट पे इन करंट टाइम वी आर गोइंग। अगर कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती है जिस हिसाब से हमारा टर्नओवर या एक्सपांशन भी करता है, अगर कुछ आता है, देन वी कैन डेफिनेटली लुक फॉरवर्ड। Okay, and one more thing on the reverse side, I'm asking, like, is there any chance that any other big companies can take over IceMac, like which is in the same segment, same industry? एक्चुअली उसके बारे में तो हम नहीं बोल सकते, क्योंकि मार्केट इज वेरी ओपन और कॉम्पिटिटर तो चाहेगा कुछ ना कोई किसी दूसरी कंपनी का भी एक्विजिशन प्लानिंग हो सकता है, मगर उसके बारे में हम हमारी ओर से तो अभी कुछ नहीं बोल सकते और हम उसके लिए हमने कोई ऐसा सोचा भी नहीं है। हम अभी आज की तारीख में हमारा बिजनेस कैसे ग्रो करे वही हमारा उसका फोकस है। Okay. Okay. Thank you. Thank you. Participants, to ask a question, you may press star and 1. Anyone who wishes to ask a question, please press star and 1. The next question is from the line of A. Kameksha, an individual investor. Please go ahead. हेलो। हेलो। हाँ जी, मुझे ये जानना है कि आप कुछ एक्सपांशन करने जा रहे हो, आपने कुछ जगह भी ली है आइसमेक फैक्ट्री के लिए, तो वो बात सही है? एक्चुअली जो अभी हमारा एक प्रोडक्ट वर्टिकल जो है रिफर वार, उसके लिए अभी हमारे लीज के ऊपर वो में यूनिट चल रहा है, तो उसके लिए हमने एक नई जगह ली है और वहाँ डेवलपमेंट का काम चल रहा है। अच्छा, तो वो प्रोजेक्ट कब तक शुरू हो जाएगा? होपफुली बाय सेकंड क्वार्टर आई थिंक वी बी एबल टू रन दैट। गुड। वर्टिकल का प्रोडक्शन और बिजनेस तो चालू ही है, सिर्फ हमें शिफ्ट करना है। अच्छा, और मेरा ये जानना था कि आप इन्वेस्टर फ्रेंडली शेयर बना दो, क्योंकि म्यूचुअल फंड, एफआईज और प्रोडक्ट आपकी अच्छी है। आपका जो अभी किसी ने पूछा कि ब्लू स्टार हिताची जो आपका कॉम्पिटिटर है वो बड़ा कॉम्पिटिटर है, आपकी भी एक ब्रांड है, तो फिर मुझे लगता है कि इन्वेस्टर और म्यूचुअल फ्रेंडली शेयर बनाना चाहिए। उसके लिए आप क्या कुछ नहीं सोच रहे हो कि कैसे करना चाहिए? अदरवाइज मेरे तो ये जो मार्केट सीनरी है उसके हिसाब से आपका रेट भी बहुत बढ़ना चाहिए और मार्केट में स्टॉक भी नहीं रहना चाहिए। तो उसके लिए आपने कुछ सोचा है कि नहीं, उसके लिए क्या करना चाहिए जो कंपनी का भी भला, इन्वेस्टर का भी भला और एक टॉप लाइन में अपनी कंपनी आ सकती है? डेफिनेटली वो तो सभी लोग चाहेंगे, मगर जो अभी का प्लानिंग है, अभी की जो सिचुएशन है, वो हिसाब से शायद हो सकता है कि म्यूचुअल फंड दे आर टेकिंग देयर टाइम टू एंटर द राइट मोमेंट, और शायद जो टिकट साइज बोलते हैं इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट, वो भी शायद उन लोगों की ओर से कोई हो सकता है कि दे आर टेकिंग टाइम। अगर बाकी जो आपने कंपनी की बताया, ब्लू स्टार है, हिटाची, वो सब बड़ी कंपनी है, मगर उनकी क्या है कि अगर हमारी प्रोडक्ट और उनकी प्रोडक्ट जो सिमिलर प्रोडक्ट की बात करें, और ये दोनों कंपनी या ऐसी कोई कंपनी है जो बाकी डोमेस्टिक मार्केट में भी उनका बड़ा शेयर है, तो वो हिसाब से लोगों का जो नंबर्स है वो ज़्यादा दिख सकते हैं। हम प्योरली कॉमर्शियल और इंडस्ट्रियल में है, इसलिए या फंड और उनको मतलब प्रेजेंट करने की क्या हमारी एफर्ट है उसकी बात की, तो हमने पास्ट में मुंबई में भी काफ़ी सारे इन्वेस्टर या वैसी जो कॉन्फ्रेंस होती है, 1-to-1 होती है, हम बीएससी में भी गए थे, वहाँ पे भी हमारा प्रेजेंटेशन हुआ था। अहमदाबाद में भी हमारे 2-3 जगह पे हुआ था। कभी भी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो हम अपनी कंपनी को या हमारे जो प्लान है किस हिसाब से हम बिजनेस आगे बढ़ाना चाहते हैं, हम कंपनी ने तो शोकेस करने की कोशिश की हुई ही है। अगर आगे भी ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी या ऐसा कोई चीज़ आएगा तो वी आर लुकिंग फॉरवर्ड। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू। Thank you. As this was the last question,
I would now like to hand the conference over to the management for closing comments. Thank you for the joining the conference call of IceMac Refrigeration Limited. Thank you. Thank you. On behalf of IceMac Refrigeration Limited, that concludes this conference. Thank you for joining us, and you may now disconnect your lines.